हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनएच बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। इसमें जो हम करेंगे आज डायनामिक सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पृथ्वी का गतिशील धरातल। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनएच बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे या किसी भी बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनके सिलेबस में डायनामिक सरफेस ऑफ द अर्थ है तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने का मौका मिलेगा, प्लस डिस्प्ले भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, और ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Most important topic arrive here, a plate tectonic. There is a plate tectonic here. The uppermost outer solid and reddish layer of the earth is called crust. I have already learned to the crust. There is a uppermost outer solid and reddish layer of the earth is called crust. It is a thickness as various is a considerable. It is as little as a 5 kilometer thick and beneath and the oceans at the some places, but under some mountain range it is extend up to a depth of 70 kilometer. The below the crust is the denser rock are found as known as the mantle crust. That is the most important here. Up to there is a depth of 70 kilometer below there is a crust is a denser rock are found is known as the mantle crust. This upper part of mantle up to the average depth is 100 kilometer from a surface is a solid. There is the most important here. The below the crust denser rock are found known as the mantle crust. And this upper part of mantle up to the average depth of 100 kilometer from to the surface is a solid. And this solid mantle is a plus upper crust from to the compactably is reduced block terminate to the lithosphere. And the mantle is a practically is a molten is a between 200 to 250 kilometer depth. And this is the zone is a solid to the sphere is known as the Mohr discontinuity as a signification of the is a Mohorosis and the name of the semi-logist who discovered it is all this is a thing you have already read their preview lesson. There is the most important here. The lithosphere is broken into the several block. There is a most important point here. The lithosphere is broken into a several block. This block is known as the plates, and which are moving over to the astrosphere. Is there is a 7 major plate shown in this figure. Here show the most important is a subduction and there are separate side. There is a south and western Indian Ocean, that is Arabian plate, and there is a most of important land here is a separate for the time to time, and there is the most important diagram show in there. In this figure, they show the Eurasian plate, African plate, Indo-Australian plate, is a Pacific plate, and North America plate, South America plate, and the Antarctic plate. There is the most important here. Apart from this major plate, is a minor plate, are about 20 in number. A few important among them here. The next is the Arabian plate, is a Philistine plate and Cusco plate and Nazca plate and the Caribbean plate and Socotra plate, etc. And the major and minor plate is a continuity. There is a whole surface of the earth. The plates is a tectonic is the method or way understanding their land is a water distribution of the earth.
Tectonics is a shorter of the movement of the plate through their movement. Internal forces are explained which are responsible for their distribution of the earth as a crust and formation of mountain chain and distributions of earthquake and volcanism. There is the most important here. But also important here a mechanism of plate movement. Here the mechanism of plate movement is the most important. The author is a Holmans and the British geologist is a 1928 to 1929 proposed that a conventional occurrence exit of underneath of the lithosphere. The center of the conventional is a current is not exactly known, but it is a belief that it has a average depth of the about 100 to the 250 kilometer below the surface. There is a most important here 100 to 250 kilometer below the surface. The interceptions of the current is initiated by the heat generation due to the radioactive minerals. Due to integrations and disintegration of the atomic minerals, heat is produced and hence the melting of surrounding rock. In this way, the current is started to operating, and this current are the classified into the rising and falling with the range and the convergence activity are respectively. There is a most important here. With the rising conventionally is a current is a transport of hot and viscous is a matter takes a place upwardly. After reaching about 100 kilometers and below the surface that the currents get a diverged as a leading to the spirit into the upper part. The molten is a materials, a penetrate is into the spirit and thus the creation of the new surface and the draft of their metamorphosis is a plate is a opposition direction. It happen below to the mid oceanics and whereas on the other hand two set of the rising thermal is a conventional is a current is a bearing two plate together and it is called convergent is a boundary where to the subdecations take place. The plate of the sphere are constantly in the motion because of conventionally is a current. There is a relative motion depend upon the force operating over them. The plate boundaries are a very important and significant structural feature. There is the most important here. The plate boundaries are very important and significant structure features and boundaries are very distributed and easy to identify. They are associated with the newly formed mountain system, oceans, ridges and terrains. And the plate are the moving continually and have a relative direction of movement. The based on the direction of movement, three types of plate boundaries can easily be identified. There is the most important. Also important here diagram. In this diagram, the types of plate is a boundaries here show in this distractive boundary, concentric boundary and distractive boundary. There is the most important here. And the also important is a plate and plate has a move, transforming fault and the plate. There is a substitute is a plate here, a new plate is a materials and subjected plate here. There are types of plate of boundaries as shown in this picture. There is the most important, the clear for the mind, the plates is the continuum. There is a exchange. There is a divergent of boundary and convergent boundary and fractures are transformed boundary fault. The conventionally is a current are causing due to the radioactives and this current is a get are diverted on approaching the crust layer. Leveraging to the current is a produce a tensions or aid the contact zone of crust leading to the fracture. The magnetic material is penetrate into the forest stage as the get are solidified. And this continued process is a push. There is a block is opposite direction and create the new zone. The known as the zone of the construction. At the convergent boundaries, the two adjustments is a plate come to further and further closer to the each other and collides. And when both sides are the continentals is a natures are the mountainer format is evident. And when one of the two is a continentals and there is the other is a maritimes again a mountain come into the begin along their boundary. In this case, a continental plate is overnight. There is a maritime, and when both plates are there, maritimes, both of them are breaks and subduct and the penetrate below and the heinous tendencies formed. Along there, this boundary is the earthquake and the volcanic activities are prominent. In all this zone is a situation, surface area is reduced and therefore this is known as the zone of distraction. There is the most important here. In all these three situations, surface is reduced.
Therefore, this is also known as the zone of distraction. Transform fault is the one when to the adjustment and the plate is a slide past each other. The direction of the movement may be along there is again, but they move to the parallel to be each other, and therefore neither there is any construction of fresh area nor in there have any distractions. And it is known as a zone of preservation. That is the most important here. And plate are not a permanent feature, but they are very size and shape. The plates can split or get welded, and with the joining of plate, almost all the tectonic activity occur along their plate boundaries. The barrier to be advent of the plate tectonics theory, their continental draft theories was and that which was the proposed by the beginners and was synchronized, and particularly about their force in the fact it is a outrightly rejected in spirit of the appearance evidence. But further is the researches and about the material of sea floor and the phenomenalism and supporting of the theory, but is the propositions of plate tectonics theory is the 1960th century and they have solved there is a problem of the mechanism of movement. There is the most important and important also here. The plate tectonics and the earthquake are volcanoes. There is the most important theory here. A plate tectonics was earthquake and volcano. The distribution of the earthquake and volcanoes over to the globes, the show in the figure, they are clear reveal that are strongly associated with the boundaries of the plates. The plates boundaries are the zone where is a very short of the tectonics activity and does take a place. The release of energy created because of the movement of plate is there manifested in this zone in the form of earthquake and volcanic eruptions. Here show the major earthquake and the volcanic belt of the world. There is the most important. The important here dotted shape is the volcanic belt. They show in this diagram, and there is a clear and the white here earthquake zone. There is the most important, and lava is a plateau is the there dark zone. And the triangle shape is a volcanic show in this diagram. There is the most important from the major earthquake and volcanic belt on the world. हमारे समक्ष जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण प्लेट विनिर्णितिकी। देखिए ये कई मानने में इम्पोर्टेंट रहता है कि आखिर जो ये भूखंड के एक पार्ट जो है अलग कैसे हुए। तो बहुत से इसमें जो है कारण हो सकते हैं। कहते हैं पहले साथ में ये सब जुड़े हुए थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब जो थे अलग हो गए। तो कई मानने में से कारण कई होते हैं। आपको पता भी होगा कि हमारे धरती पे आए दिन भूकंप आते रहते हैं, और भूकंप आने की वजह से क्या होता है कि अर्थ क्वैक के कारण जो होती है जो है दरारें फटती है। और इन दरारों के कारण क्या हो सकता है कि ये जो पहले एक साथ थे हो सकता है कि अलग हो गए हों। कई जगह वोल्केनिक भी होती है, यानी लावा भी निकलती है, तो ये सब भी कारण हो सकता है। तो इसी के विषय में जो है हम यहाँ विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश करेंगे और कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यही बात यहाँ दर्शाने की कोशिश की जाएगी। पृथ्वी के बाहर ठोस और जो है कठोर परत को जो है भूपृष्ठ कहा जाता है, और इसकी मोटाई अब जगह एक सामान्य नहीं है। देखिए इसकी मोटाई सब जगह एक सामान्य नहीं होती है, और ये बात सबको पता है कि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है इनकी साइज होती है। यह महासागरों के नीचे कहीं केवल 5 किलोमीटर मोटी भी हो सकती है, परंतु कुछ पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी हो सकती है। भूपृष्ठ के नीचे जो है सघन शैली पाई जाती है जिन्हें हम मेंटल कहते हैं, यानी काफ़ी सघन एरिया पाया जाता है जिसको मेंटल के नाम से भी जाना जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग धरातल से औसतन 100 किलोमीटर की गहराई तक ठोस होता है, यानी 100 किलोमीटर तक आप चले जाओ धरती के नीचे तो यह आपको काफ़ी ठोस पदार्थ के रूप में मिलेंगे। और यह ठोस मेंटल तथा ऊपरी भूपृष्ठ मिलकर जो है तुलनात्मक रूप से एक कठोर खंड का निर्माण करता है, जिसे हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। यानी इन्हीं कारणों से जो है स्थल मंडल का निर्माण हुआ है जहाँ पर जीव जंतु के रहना सुनिश्चित हुआ है। मेंटल जो होती है 100 से लेकर 250 किलोमीटर की गहराई के बीच आंशिक रूप से जो है पिघला हुआ होता है, यानी 100 के बाद आप जैसे जाइएगा आपको जो होगा यहाँ पर मेंटल जितने भी होंगे वो सब आपको पिघले हुए रूप में आपको नजर आएगा।
इस क्षेत्र को जो दुर्बलता मंडल कहते हैं, यानी अगर जो पिघला हुआ क्षेत्र होता है उसको जनरली आपको याद रखना चाहिए कि 100 से अगर 250 के जो किलोमीटर गहराई के बीच आंतरिक रूप में पिघला हुआ जो हमें मेंटल मिलता है उसे हम दुर्बल मंडल कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। और इसे मोह अस्तित्व भी कहते हैं, यानी इसको हम मोह अस्तित्व भी कहते हैं। और यह भू जो है कंपन वैज्ञानिक मरोविक का जो है संक्षिप्त नाम है, जिसने इसे खोजा था। और इस सब बातों को जो है आप पिछले अरे पढ़ भी चुके हो, अगर नहीं देखा है वीडियो तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है कि हमारे भूपट्टी में कितने तरह के एलिमेंट और उसका क्या महत्व है और कैसे जो है ये पिघल जाता है और किस क्षेत्र पे जाके जो है पिघला हुआ हमें मिलेगा और कैसे जो है साइंटिस्टों के जो है उपकरण है वो किस प्रकार जो है वहाँ जाते ही नष्ट हो जाता है और उनको अध्ययन करने में जो है नई कामयाबी मिल पा रही है। तो ये सारी चर्चा जो है हम पहले ही कर चुके हैं, अगर नहीं देखिएगा वीडियो तो आपको समझ नहीं आएगा। तभी कहते हैं हर एक वीडियो को जो है आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। एक वीडियो देख के आप नहीं समझ सकते कि आखिर पीछे क्या हुआ था। कहते हैं अधूरी जानकारी सदैव खतरनाक होती है, तो वो काम मत कीजिएगा। कहते हैं अगर देखना है तो अच्छे समझ लीजिए जो आपको कामयाबी की जो है सीढ़ियों पे ले जाए। अधूरी जानकारी जान के जो है कोई आगे कामयाब नहीं हो सकता है। आप लोग ये सोचते होते हो कि थोड़ा सा वीडियो देख लूँगा, थोड़े मिनट का देख लूँगा। दोस्तों आप बड़े क्लास में हो, +2 में हो, अगर +2 में अगर आप ये सोचिएगा कि 10 मिनट के वीडियो से, आप 15 मिनट के वीडियो से हमारा काम चल जाएगा तो शायद आप गलतफहमी में हो, क्योंकि इतने मिनट से कुछ नहीं होने वाला है। आपको विस्तार पूर्वक जानने की ज़रूरत है, तभी हमारा भविष्य जो है उज्जवल होगा। क्योंकि हम अधूरे जानकारी के साथ पास तो हो जाते हैं लेकिन हमें समझ नहीं होता है। तभी तो आप कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ आपको बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों की कमी नहीं मिलेगा। कहते हैं आज की दुनिया में हर जगह जो है लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने पर लगे हुए हैं। आप कहीं कहीं कुछ भी करने चले जाओ, अगर काम नहीं होगा तो पैसे लेके जेब में लेके बैठ जाएंगे, आपको देंगे नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा समझदार रहोगे तो आप 2 मिनट में पैसे निकाल सकते हो। तो ये सारी बातें आपको एक समझ के लिए ज़रूरी है। तभी कोई भी बात को आपको अधूरा नहीं रखना है, हर एक वीडियो को समझना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो हर वीडियो को समझना ही तिरपान स्टडी सेंटर के बच्चों को ज़रूरी है, क्योंकि आप हमसे जुड़ गए हो इसका मतलब तिरपान स्टडी सेंटर के जो है स्टूडेंट कहलाओगे और आपको हर एक बात को जो है विस्तार पूर्वक समझने की आवश्यकता है। तभी कहा जाता है कि अधूरी जानकारी सदैव खतरनाक होती है। यहाँ पर इस बात को दर्शाने के लिए देखिए एक डायग्राम शो है जिसमें जो है धसावर वाली क्षेत्र और विस्तार वाला क्षेत्र जो के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। कहते हैं अगर यूरेशियन प्लेट और टेंशन जो है अंटार्कटिका प्लेट को हम देखें तो इसे लगता है कि सारे एक साथ थे। और देखिए भारतीय प्लेट भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भारतीय प्लेट भी दिख रहा होगा। तो ये सारे जो थे एक साथ थे और प्रशांत प्लेट भी आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है कि पहले सब एक थे, लेकिन समय के साथ जो है इसमें बदलाव होती चली गई और ये जो है अलग होते चले गए। तभी तो कहा जाता है कि हमारा जो है इतिहास में अगर देखिएगा तो महाभारत की स्टोरी सब दिखाई जाती है अगर इंडिया की बात करें तो, लेकिन वही बात अगर विदेशों में देखा जाए तो नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों? और कई जगहों पर ये बात को प्रमाणित भी मिलता है कि इस क्षेत्र में ऐसी चीज़ें हुई थी। तो ये सारी बातें इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि पहले सभी एक साथ थे, लेकिन समय के साथ जो है ये अलग होते चले गए। अगर आपने मेडलफ का भी अगर रूल रेगुलेशन पढ़ा होता, जो ब्रिंग वाली स्टोरी बताई गई थी 10th क्लास में, तो वो बात भी दर्शाता है कि किसी कारणवश जीव जंतु जो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पर उनको काफ़ी मात्रा में खाने वाले वस्तु मिल जाता है तो वो वृद्धि कर जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, इंसान पे भी तो ये चीज़ें लागू हो सकती है ना कि किसी कारणवश जो है प्लेट दूर होती चली गई, इंसान भी उससे दूरियां बनती चली गई। जो जिस क्षेत्र में गया उस क्षेत्र के निवासी बन गया और वहीं पे फला फूला और अपना जीवन यापन करने लग गया। तो यही हो सकता है और यही प्रमाणित पूरी तरह से जो है सत्य भी सिद्ध होता है। यहाँ पर अगर देखिएगा तो यूरेशिया प्लेट दिख रहा होगा, अफ्रीकी प्लेट जो हम अभी जो चित्र देखे तो उसमें सारी बातें दर्शाई गई थी। यूरेशिया प्लेट, अफ्रीका प्लेट, भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट, प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। तो ये सारे के सारे प्लेट जो थे वहाँ पर विद्वान थे और बहुत ही जो ये दर्शाते थे कि सभी एक साथ पहले जुड़े हुए थे। इन मुख्य प्लेटों के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे प्लेट भी है जिनकी संख्या लगभग 20 है। इसमें से कुछ प्लेट इस प्रकार है।
अरबी प्लेट, फिनोफिल प्लेट, कोकोस प्लेट, नजाका प्लेट और कोरोनियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट। देखिए सारे के सारे जो है प्लेट कई मानने में इंपॉर्टेंट है। मुख्य छोटे प्लेट और संपूर्ण पृथ्वी के धरातल का निर्माण करते हैं। प्लेट विज्ञानिकी पृथ्वी के भूमि और जल के वितरण को समझने का एक सबसे अच्छा और सबसे विस्तृत तरीका है। कहते हैं वर्तानीय प्लेट एक प्रकार के जो है संचलन है, यानी ये चलती रहती है। संचलन का अर्थ ही होता है चलना, और इस संचलन से जो है आंतरिक शक्ति को काफ़ी समझाया गया है, जो कि पृष्ठभूमि के वितरण और जो है पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण और भूकंप तथा ज्वालामुखी वितरण के लिए उत्तरदायी है। ये बात कोई दो नहीं राय हो सकता है कि अगर हम देखें तो भूपृष्ठ के वितरण के कारण जो है सबसे बड़ा कारण जो है भूकंप ही मानी जाती है, यानी जो है अर्थक्वेक मानी जाती है। दूसरा कारण जो माना जाता है वो ज्वालामुखी होती है, ठीक है। तभी जो है भूपृष्ठ की वितरण संभव होता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जब भूकंप आती है तो बहुत बड़ी दरार फट जाती है, और ये दरारें में जो है पानी भर जाती है, और इसको दो पार्टों में जो है बांटने के लिए ये कई मानने में पर्याप्त होती है। और यही बात को जो है समझाने के लिए हम प्लेट संरचना के जो है रचनात्मक तंत्र के विषय में जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि प्लेट संचलन का रचनात्मक तंत्र क्या है। देखिए यहाँ पर जो है प्लेट संचलन के रचनात्मक तंत्र के विषय में जो है हमारे लिए पर्याप्त वर्ड है। कहते हैं एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक आर्थर हेम्स ने सन 1928 से 1929 में बताया कि स्थल मंड के नीचे जो है संबानी धाराएं विद्यमान होती है। इन संबानी धाराओं का जो है केंद्र जो ज्ञात नहीं है, परंतु यह माना जाता है कि धरातल के नीचे इसकी गहराई लगभग जो है 100 से लेकर 250 किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि हमने पहले चैप्टर में बात साफ कर लिया था कि अगर 100 के बाद अगर आप जाते हो तो आपको जो है बहुत चीज़ें जो है मेंटल्स जो होते हैं पिघले हुए नज़र आते हैं। तभी कोई भी साइंटिस्ट जो है अभी तक वहाँ पर अपने जो है कोई भी उपकरण को भेजने में सफल नहीं हुआ है, जिसके विषय में हमने पहले चैप्टर में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। ये धरातलें रेडियोधर्मी खनिजों के जो विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, और रेडियोधर्मी खनिजों के एकीकरण और विखंडन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो आसपास की शैलियों को पिघला देती है। तभी जो है वहाँ पर जो है शैलो जो होते हैं पिघले हुए नजर आते हैं। इस तरह के संबानी धाराओं चलिए आरंभ हो जाती है, और इन धाराओं को जो है अपसरण और अभिसरण क्रियाओं के साथ क्रमशः आरोही और अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ देखा जाए तो ऊपर उठती हुई संबानी धाराएं द्वारा गर्म और चिपचिपा पदार्थ ऊपर की ओर उठने लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी गर्म होता है और ऊपर की तरफ उठना उसकी स्वाभाविक क्रिया होती है। धरातल के नीचे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचने के बाद ये धरातल जो है मुड़ जाती है, जिसे ऊपर की परत फट जाती है, पिघला हुआ पदार्थ टूटे हुए भाग में धंस जाती है, और इस प्रकार के एक नए धरातल का जन्म होता है। यानी इसी प्रकार जो है एक नई धरातल का जन्म होता है, और एक भारी प्लेट विपरीत दिशा में जो है खिसकने लग जाती है। यानी एक भारी प्लेट विपरीत दिशाओं में खिसकने लगती है, और यह मध्य महासागरीय कटक के नीचे होती है। दूसरी ओर दो जोड़ी अवरोही ऊष्मीय संबानी धाराएं जो है दो प्लेटों को आपस में जोड़ती है, और यह आरोही सीमा बनती है। यहाँ जो है धंसाव की प्रक्रिया होती है। संबानी धाराओं के कारण जो है स्थल मंडल की प्लेट लगातार चलमान रहता है। यानी ये प्लेट जो सदैव जो है धरातल के कारण क्या होता है, ये चलमान होता है, यानी चलता ही रहता है। तभी तो कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर पहले प्लेट एक साथ थे, लेकिन समय के साथ ये जो थे धीरे धीरे अलग होते चले गए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझने के लिए भी आपके लिए पर्याप्त है। यहाँ पर प्लेट सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उल्लेखनीय जो है संरचनात्मक लक्षण भी होती है। यानी प्लेट सीमाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होना और उल्लेखनीय जो संरचना लक्षण दिखाता है। सीमाएं अत्यंत जो होते हैं सुस्पष्ट और सरलता से पहचानी जाने वाली होती है, और यह नवीन पर्वत तंत्रों और महासागरीय कटकों और गतों से संबंधित होती है। प्लेट लगातार खिसक रहे होते हैं और इसके जो खिसकने की दिशा सापेक्षिक होती है। प्लेटों की खिसकने की दिशा के आधार पर जो है आसानी से इसको 3 प्रकार की प्लेट सीमाओं की पहचान की जा सकती है। देखिए यहाँ पर जो है खिसकने की सारी विधियाँ और जो है डायग्रामेटिक शो करने की कोशिश किया गया है। चलिए डायग्राम देखते हैं कि कैसे प्लेट जो है खिसकता है। देखिए यहाँ पर जो है एक चित्र दिखाया गया है जो प्लेट सीमाओं के आकार दर्शाने के लिए काफ़ी है। अगर आपको ध्यान दिख रहा होगा तो जो एरो है मुड़ा हुआ है, मुड़ा एरो जो होती है धसी हुई प्लेट को दर्शाता है। देखिए एक प्लेट था, लेकिन उसमें क्या हुआ, भूकंप के कारण दरार पड़ गई, और दरार के कारण क्या हुआ, ये प्लेट जो थी धंसने लग गई।
यानी इसका अर्थ यही हुआ कि विनाश का क्षेत्र आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ निर्माण का क्षेत्र है, और दूसरी तरफ फिर से विनाश का क्षेत्र हुआ है जो यहाँ पर इधर भी प्लेट जो है धंसने की जो है दिशा में मुड़ी हुई है। तो ये सारी बातें समझाने के लिए पर्याप्त है कि जब भी भूकंप आते हैं, दरारें फटते हैं, तो प्लेट जो है उसके अंदर समा जाती है, और इसकी वजह से जो होता है बीच में एक जो है बहुत बड़ा नदी का जो है सागरों का निर्माण हो जाता है, जिससे दो महाद्वीप जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो ये काफ़ी मानने में जो है समझदारी वाली बात है, समझने वाली बात है कि नया प्लेट पदार्थ का जो है यहाँ निर्माण हो जाता है, जो रूपांतर अवयव के रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी विस्तृत है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये सब जो डायग्राम हमने देखा उसमें जो है अपसरण सीमाएं और अभिसरण सीमाएं, रूपांतरण भद्र जो है भस्म सीमा, संबानी धाराएं रेणुधर्मी पदार्थों से उत्पन्न होती है। देखिए किससे उत्पन्न होती है? रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं काफ़ी संवहनी धाराएं उत्पन्न करती है, और ये धाराएं पृष्ठभूमि की परत तक जो है पहुँचते ही मुड़ जाती है। जैसे पृष्ठभूमि पर पहुँचती है मुड़ जाती है। अब सारी धाराएं जो है भूपृष्ठ के मिलन क्षेत्र में खिंचाव पैदा करती है, जिससे ये टूट जाती है, यानी खिंचाव पैदा होता है जिसकी वजह से ये टूट जाता है। चुंबकीय पदार्थ इस टूटे हुए भाग में जो है घुसकर ठोस हो जाता है, और ये लगातार चलने वाली क्रियाएं जो है खंडों को जो है विपरीत दिशाओं में धकेल कर एक नए क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम निर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी ये जो है धकेल कर विपरीत दिशाओं में जो है एक नए क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसको हम निर्माण क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अभी सरल अगर बात करें, अभी सरल सीमाओं के नज़दीक के दो प्लेट एक दूसरे के बहुत ही पास आ जाती है और ये टकरा जाती है। जब दोनों खंड महाद्वीपीय प्रकार के होते हैं तो पर्वतों का निर्माण होना स्वाभाविक बात है। जब एक खंड महाद्वीपीय तथा दूसरी महासागरीय होते हैं तब भी इसकी सीमाओं के जो है पास पर्वत का निर्माण होता है, और इसमें जो है महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के जो है ऊपर चढ़ जाता है। जैसे हमने डायग्राम में भी देखने की कोशिश किया था कि एक धंस जाता है और उसके ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ जाता है। जब दोनों खंड महासागरीय होते हैं तो दोनों जो है टूट कर धंस जाते हैं और नीचे प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि डायग्राम में भी टेढ़े एरो दर्शा रहे थे, जिसे गर्तों का निर्माण होती है। और इस प्रकार की जो है सीमाओं पर भूकंप और ज्वालामुखी जो है उद्भेदन प्रमुख होता है, यानी भूकंप और ज्वालामुखी का जो है अपना यहाँ पर विशेष रोल होता है। इन तीनों की अवस्थाओं में धरातलीय क्षेत्र कम हो जाती है, इसलिए इसे विनाश का क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको विनाश का क्षेत्र भी डायग्राम में दिखाया था, तो वही बात यहाँ भी दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि जो धरातलीय क्षेत्र में कम हो जाते हैं उसे विनाश का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कहते हैं रूपांतर भ्रम सीमा वह होती है जहां एक दूसरे के पास स्थित प्लेट एक दूसरे से रगड़ते हुए विपरीत दिशाओं में खिसक जाते हैं, यानी ये प्लेट जो है आपस में रगड़ते हैं और फिर ये जो है खिसक जाते हैं। इसके खिसकने की दिशा एक दूसरे के साथ साथ विपरीत हो जाती है, परंतु एक दूसरे के समांतर खिसकते हैं, इसलिए यहाँ न तो नए क्षेत्र का निर्माण होता है और न ही भूपटि नष्ट होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए इसे जो है परिच्छेदित क्षेत्र कहते हैं, यानी इसका नाम जो दिया जाता है परिरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर खिसकते हैं, इसलिए यहाँ न तो नए क्षेत्र का निर्माण होता है और न ही भूपटि नष्ट होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाते हैं। प्लेट जो होती है स्थायी लक्षण नहीं होते हैं, वरना इसका आकार और आकृति बदलती रहती। प्लेट विभाजित या पास के प्लेट से जुड़ सकती है। लगभग सभी जो है वैतनिक हलचलें प्लेटों की सीमा पर होती है, यानी सारे हलचलें जो है प्लेट की सीमाओं पर निर्धारित होती हैं, और प्लेट जो है वैतनिक सिद्धांतों से पहले वेगनर द्वारा जो है प्रतिपादित किया जा चुका है। वेगनर ने यहाँ पर प्रतिपादित जो है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांतों को आलोचना विशेष रूप से ऊर्जा या शक्ति के लिए हुई थी, जो महाद्वीपियों को विस्थापित करती थी। वास्तव में इस सिद्धांत को स्पष्ट प्रमाणों को होते हुए भी अस्वीकार कर दिया गया था, जो कि बहुत बड़ी विडंबना थी। लेकिन समुद्री सतह के पदार्थों और पराचुंबकत्व में किए गए अन्वेषण में इस सिद्धांत का समर्थन भी किया, और 1960 में प्लेट जो वर्तन सिद्धांत से ने प्लेट संचलन की संरचनात्मक की समस्याओं को सुलझा सा दिया। उसके पश्चात प्लेट वितरणकी की जो बनाम भूकंप और ज्वालामुखी। देखिए ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी मानने में इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण, जैसे कि हम चित्र में भी स्पष्ट कर देता है कि यह प्लेट की सीमाओं के दृढ़ता से जुड़े हुए होते हैं। प्लेटों की सीमाएं वह क्षेत्र है जहाँ हर प्रकार की वितरणिक क्रियाएँ होती है। प्लेटों के खिसकने से जो मुक्त ऊर्जा भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में यहाँ अभिव्यक्त हो जाता है, जो कि काफ़ी पर्याप्त और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ दर्शाता है। देखिए इस डायग्राम में भी आपको इस बात के प्रमाणित मिल जाएगा कि बहुत से क्षेत्र जो है
जो ज्वालामुखी भूकंप के क्षेत्र को निर्धारित करती है। अगर आपने डॉट डॉट निशान दिख रहे होंगे अधिक मात्रा में, तो ये ज्वालामुखी प्लेट के रूप में दर्शाया गया है। अगर आपको खाली क्षेत्र दिख रहे हैं तो खाली क्षेत्र का अर्थ होता है भूकंप जोन, यानी भूकंप के क्षेत्र होते हैं जहां पर आए दिन कहीं ना कहीं भूकंप आते रहते हैं। अगर आपने जो बड़ा डॉट देख रहे होंगे वो जो है लावा पठार क्षेत्र है, ठीक है, और इस क्षेत्र में जो है लावा हमेशा फूटती रहती है। अगर आप ज्वालामुखी की बात करें तो ये ट्रायंगल शेप में आपको नज़र आ रहा होगा, ये ट्रायंगल शेप में यहाँ दर्शाया गया है। तो ये सारी बातें बताती है कि प्लेट जो है धीरे धीरे कैसे जो है अपना रंग रूप चेंज करते जा रहे हैं और जो है महाद्वीपों को अलग करते जाने में इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक जो है चैप्टर जो है अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना। अगर आपने अच्छे से तैयारी करना है तो हर एक चैप्टर को ध्यान से समझना है, सोचना है। और दूसरी बात ये भी जरूरी है कि इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प भी करना है, जिससे दूसरे बच्चों को भी जो है लाभ मिल सके, ठीक है। और दूसरी बात ये रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चलो सब्सक्राइब करके सेव करना आपके हित में रहेगा। नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा, और दूसरी बार सर्च करने की कोशिश करोगे तो मेरा वीडियो शायद प्राप्त भी न हो। इसलिए अगर मेरी वीडियो को फ़ायदा उठाना चाहते हो तो जो है चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, आपके हित में रहेगा, जहाँ से आप सोच भी सकते हो, समझ भी सकते हो और विचार भी कर सकते हो।